Yeah, good evening, students. I am giving you exactly 5 minutes to make sure that you have a construction box ready with your pencil, scale, eraser, rounder, all these things you'll be requiring because I want you all to draw along with me, okay? So make sure that you have all the instruments ready and handy with you all, okay? Chalo. I'm waiting for you all of you all so that you all of you are ready with it, okay? Okay, so all of you are ready? Now students, please understand this chapter is of altogether 4 lectures. Okay, first and second lectures are very simple, and of course one topic of construction is completely dependent on circles topic, but that topic is deleted from the circle chapter, so definitely construction based on that won't come. Okay, so I'm teaching you the most important part. Of course I'll be covering the entire chapter. Let's see how much time does it take. It totally depends on how you respond back in drawing. Okay, fine. Please be active with messages so that I understand whether if you have any query or if you have any doubts, please feel free to chat. Okay. So now this is one sum practice set 4.1. Triangle RST similar to triangle XYZ. Now please understand students, there are two types of such sums. Okay. Two types. Now what two types I'm talking about? Whenever the two triangles are similar, okay, whenever the two triangles are similar, we have two triangles named in 3 letters: triangle RST and triangle XYZ. Okay, so triangle RST similar to triangle XYZ. If you see that there is no letter common here, RST. These are the 3 letters for the first triangle, and X, Y, Z. These are the other 3 letters for the second triangle. So there is no common letter between these two triangles. So this is first type, wherein the two triangles are similar, but there is no common letter in between the two triangles. Got it? Fine. Yeah. Now listen carefully.
So the two triangles are similar. Triangle RST similar to triangle XYZ. बराबर? Perfect? Yeah. ये फर्स्ट टाइप समझा जिसमें एक भी लेटर कॉमन, ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है कि दोनों भी ट्राइंगल्स में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है. जब दोनों भी ट्राइंगल्स में कोई भी लेटर कॉमन नहीं होगा, सो व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस? ओके, और हाउ टू डू दिस कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हम एनालिसिस समझ लेते हैं. We know that triangle RST is similar to triangle XYZ. This is given information. Now we all know, students, when the two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. मतलब the ratios are equal. बराबर? Corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. So sides का ratio equal होगा and जो angles होंगे, corresponding angles जो होंगे वो congruent होंगे. बराबर है? यहां पर देखो एंगल RST का वैल्यू दिया है 40 डिग्री. तो इफ यू टॉक अबाउट एंगल S, बीच में कौन सा लेटर है? S. सो एंगल S किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल Y को. बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट. सो वी कैन से दैट एंगल RST इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. बराबर? इसका रीजन होगा CAST, corresponding angles of similar triangles. बराबर? Fine. Now students, we know that angle RST is 40 degree. Okay, angle RST का value 40 degree है. So definitely we can say that angle XYZ का value भी 40 होगा because दोनों angles congruent है. तो अगर RST 40 degree तो angle XYZ भी 40 degree. Did you understand? ये हमारे काम का चीज है. So we'll mark this. Okay, highlight कर दिया देखो. Now if you talk about RS, okay, now tell me students, triangle similar है कि नहीं? Now triangle similar है तो RS का corresponding side क्या होगा? RS का corresponding side होगा XY. So RS upon XY. बराबर है? अच्छा, ये आप सोचेंगे यही क्यों लिया? बिकॉज देखो RS upon XY रेशियो भी है, कुछ वैल्यू दिया है उसका. बराबर है कि नहीं? और RS के बारे में तो सोच दिया भी है वैल्यू, तो RS तो लिया ही हमने. कौन सा साइड है? और एक ST. So if you talk about ST, tell me which is the corresponding side for ST? It would be YZ. So is equal to ST upon YZ. इसका रीजन होगा CSST, corresponding sides of similar triangles. Okay, we are marking this as equation number 1 because we know that ये काम का चीज है आगे. I hope all of you have understood this. Clear? समझा? Okay, now pay attention all of you. आगे क्या समझना है? अब RS upon XY is equal to ST upon YZ. Now RS upon XY का वैल्यू भी दिया है, बराबर है कि नहीं? 3/5. बराबर है? So RS upon XY का वैल्यू दिया है 3/5. This is equation number 2. We know it is given information. Now look here, look at equation 1 and equation 2. If you look at equation 1 and equation 2, we can say that RS upon XY is a common ratio. So RS upon XY common ratio है, तो हम लिख सकते हैं therefore RS upon XY is equal to ST upon YZ is equal to 3/5. This is equation number 3. Did you understand? ये मिला कहाँ से? From 1 and 2. I hope all of you have understood, students. Now look at the first ratio and the last ratio. First ratio and last ratio, इस पर ध्यान देना. Okay. RS upon XY is equal to 3/5. मैंने आपको बताया था look at the first and the last ratio. तो हमने यही दो रेशियो लिया. RS upon XY is equal to 3/5. अच्छा, इसमें RS का वैल्यू दिया है, देखो क्वेश्चन में RS का वैल्यू दिया है 4.5, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर 4.5 अपॉन XY is equal to 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर XY is equal to 4.5 into 5 upon 3. Now if you consider this 4.5 as 45, डेसिमल भूल जाओ, बाद में देखेंगे. अगर इसको 45 कंसिडर करोगे तो 3 से डिवाइड हो सकते हैं. सो 3 1s are 3 and 3 5s are, बराबर है? सो 1.5 आ जाएगा. 15s are 3 into 15 is 45. We all know. So 1.5 into 5 is how much? So XY is equal to 7.5, बराबर, सेंटीमीटर. XY का वैल्यू मिल गया, बराबर है? तो देखो RS का वैल्यू पता है, XY का वैल्यू पता है, ST का वैल्यू भी पता है हमको. तो नाउ वी कैन फाइंड आउट YZ. सो अभी कौन से दो रेशियो लेंगे?
सेकेंड रेशियो लेंगे एंड थर्ड रेशियो लेंगे. सो ये दोनों को रेशियो लेंगे अभी. ST अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5. फ्रॉम 3 मिला ये. ST का वैल्यू पता है 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5. सो YZ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो YZ इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5 अपॉन 3. वापस 5.7 को 57 कंसिडर करो तो 3 से डिवाइड करो तो 319 जा मतलब 1.9 बराबर. सो YZ इज इक्वल टू 1.9 इंटू 5. 1.9 इंटू 5 इज 9.5 सेंटीमीटर. तो चलो XY का वैल्यू मिला, YZ का भी वैल्यू मिल गया. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. डन, नो डाउट्स एट ऑल. ओके, अभी ध्यान देना. सॉरी, एक्सक्यूज. अब ये सारे वैल्यूज हमने फाइंड किए थे, बराबर है. नाउ विल स्टार्ट विद द ड्राइंग पार्ट. प्लीज पे अटेंशन. ये एनालिटिकल फिगर. सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करने को बोला है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल XYZ. सो एक एनालिटिकल फिगर होगा RST का एंड मेन फिगर भी होगा RST का. फिर एक एनालिटिकल फिगर होगा XYZ का एंड मेन फिगर भी होगा XYZ का, बराबर. तो RST में RS का वैल्यू 4.5, ST का वैल्यू 5.7 एंड एंगल RST 40 डिग्री. अभी आपको एनालिटिकल फिगर मतलब रफ फिगर बोलते हैं जिसको. ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है आपको 4.5, 5.7. आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है इस तरह से और मेजरमेंट्स लिखने हैं. डन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद दिस पार्ट. अब ये हमने ट्राइंगल RST बनाया है जो एनालिटिकल फिगर है. अभी हमको मेन फिगर बनाना है RST का. तो टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेस ऑफ ST? हाउ मच इट इज? ST इज 5.7. तो चलो ड्रॉ करने को लेते हैं. तो पहले बेस लाइन बनाएंगे, एक बेस लाइन बना लेंगे. ओके, बनाया. अब ST 5.7 है. ST कितना है? 5.7. देखो मेजरमेंट्स देखो, 5.7 ले लिया है. ओके, अब कहीं पर भी एक रख के आर्क ड्रॉ करेंगे. ये पॉइंट T हो गया. अब वही पॉइंटर T पर रख के यहां पर एक आर्क बना देंगे. ये हो गया ST सेगमेंट जिसका लेंथ कितना है? 5.7 सेंटीमीटर, बराबर. अब पॉइंट S पर कितना डिग्री एंगल है? 40 डिग्री एंगल है. तो प्रोट्रैक्टर रखेंगे. कितना डिग्री मेजर करना है? 40 डिग्री मेजर करना है. तो 40 डिग्री मेजर कर लिया. अब 40 डिग्री का पॉइंट मार्क करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर है. अब R लोकेट करने के लिए S से R कितना डिस्टेंस है? S से R कितना डिस्टेंस है? 4.5 सेंटीमीटर. तो विल कीप द पॉइंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. देखो 4.5 मेजर किया. नाउ विल कीप द पॉइंटर एट S एंड देन 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने आर्क कट कर दिया. पॉइंट R विथ डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर, बराबर. समझा? अब आपको सेगमेंट RT ड्रॉ करना है. बिकॉज R पता है, T पता है. जस्ट सेगमेंट RT ड्रॉ करना. ये हो गया ट्राइंगल RST. क्लियर ऑल ऑफ यू? विथ बेस सेगमेंट ST 5.7, SR 4.5 एंड एंगल RST 40 डिग्री. चलो ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट. वो लिखने का काम के लिए जगह छोड़ दो. लिखने के काम के लिए जगह छोड़ दो. पहले ऐसा फिगर बना लो. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. राइटिंग पार्ट लिखेंगे, उसके लिए एक पेज छोड़ दो. नेक्स्ट पेज पे फिगर ड्राइंग ले लो. पहले एनालिटिकल फिगर राइट हैंड साइड कॉर्नर में और उसके नीचे ये मेन फिगर. कंजूसी मत करना. एक पेज पे एक एनालिटिकल फिगर और मेन फिगर आना चाहिए. Please be honest in drawing. Okay, I am giving you exactly 3 minutes for drawing this figure. 3 minutes, उससे ज्यादा नहीं है, because और भी drawing है. राइटिंग वर्क के लिए अलग से टाइम दूंगा, डोंट वरी.
Chirag, switch off your video. Finish drawing, all of you? Cleared, all of you? Okay, fine. Now pay attention. Now, which is the next triangle we are supposed to construct? We have constructed RST. Now we have to construct triangle XYZ. So for triangle XYZ, first we need to draw analytical figure. ये analytical figure मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या ड्रॉ करना है. देखो XYZ में XY पता है 7.5, YZ पता है 9.5 and angle XYZ पता है 40 degree. So this would be the figure. ट्राइंगल XYZ इस तरह से ड्रॉ करेंगे. रफ फिगर टाइप से यही है, जहां पर एग्जैक्ट 7.5, 9.5 और 40 डिग्री एग्जैक्ट नहीं लेना है, बस एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ये मेजरमेंट्स उसके. ओके, सो अभी फेयर फिगर कैसे ड्रॉ करोगे? नीचे बेस लाइन, देखो बेस लाइन कंपल्सरी ड्रॉ करना होता है. फिर मनस्वी, कैन यू आस्क, टेल मी व्हाट इज योर क्वेरी? ओके फाइन, नो इश्यूज, बाय मिस्टेक हुआ, ठीक है. अब बेस लाइन, बेस सेगमेंट कितना है? 9.5 सेंटीमीटर. तो विल मेजर 9.5 सेंटीमीटर फर्स्ट. देखो 9.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है, देखा? ओके, नाउ कीप द पॉइंटर ऑन द बेस लाइन एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 9.5 सेंटीमीटर. ये हो गया पॉइंट Z. नाउ कीप द पॉइंटर एट Z एंड दूसरी तरफ आर्क ड्रॉ करो, तो ये हो गया पॉइंट Y. सो YZ का लेंथ कितना है? 9.5 सेंटीमीटर, ये लिख लो. अब Y पर एंगल कितना डिग्री है? 40 डिग्री है. तो कीप द प्रोट्रैक्टर ऑन पॉइंट Y. इस तरह से रखा. अब कितना डिग्री मेजर करना है? 40 डिग्री. सो 40 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर दिया. क्लियर? अब फ्रॉम पॉइंट Y विल ज्वाइन और विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट. तो देखो, थ्रू दैट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट Y वी आर ड्रॉइंग वन लाइन, बराबर 40 डिग्री, बराबर. अब हमें लोकेट करना है इस लाइन पर, हमें क्या लोकेट करना है? पॉइंट X. ये पॉइंट X लोकेट करना है. तो कितना डिस्टेंस है Y और X के बीच में? 7.5. सो फर्स्ट विल मेजर रेडियस 7.5. ये देखो 7.5 रेडियस मेजर कर लिया. नाउ कीप द पॉइंटर ऑन Y. पॉइंटर देखो Y पर रखा है. 7.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट कर देंगे. ये हो गया पॉइंट X, जिसका डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर यहां पर लिख लिया. ओके, नाउ X और Z को जोड़ देंगे. सो ये कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल XYZ एज वेल. यहां पर X है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा, बट X इज देयर. ओके, सो दिस इज ट्राइंगल XYZ जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया. ड्रॉ कर लो. Yash, you have any doubts?
Yes, Mahi, you can talk to Nishant sir for this. Okay, you'll get the same. Okay, yes, by mistake. Finished, all of you? If three sides are given, then तीनों साइड, जैसे दो साइड फाइंड कर लिए वैसे तीसरा साइड भी फाइंड कर लेंगे. मतलब इंस्टेड ऑफ एंगल हियर तीसरे साइड का वैल्यू दिया होगा. मतलब ये जैसे देखो ये साइड दिया है, ये साइड दिया, तो और एक साइड दिया होगा. ओके, फिनिश ऑल ऑफ यू? शैल आई प्रोसीड? बिकॉज अभी आपको वो सॉल्यूशन कॉपी करना है, सॉल्विंग कैसे किया है. स्टूडेंट्स फिनिश्ड? कुछ रिप्लाई करो सो दैट आई कैन प्रोसीड. Others, please reply so that I understand. Fine, no problem. Copy down this first. इस सम का शुरुआत. Sagar, you can talk to Nishant sir. He can make the arrangements of links to you. Okay. Okay, finished all of you writing the first part?
Finished, all of you? Yes, Devendra, did you get it? Fine. Done? Okay, fine. So this is done. ये जरूरत नहीं है, बेसिक कंस्ट्रक्शन में आपको चैप्टर के साथ ही सिखा देता, मतलब सम्स के साथ ही दिखा देता. ओके, कोई टेंशन नहीं. ये 7th में सिखाया बेसिक है, इसका बात हो रहा है. ओके, दिस इज द सम. नाउ पे अटेंशन, प्लीज लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. ओके, ध्यान से सुनना सब लोग. प्रैक्टिस सेट 4.1 सब नंबर 2. Triangle PQR is similar to triangle LTR. If you remember, I said it to you all. When the two triangles are similar, you should identify which type it belongs to. Because triangle similar है, ऐसे दो types है. In first type, we don't have any letter common between the two triangles. And in the second type, we will have one letter common. So you can see triangle PQR and triangle LTR में letter R is common letter. So this is the second type of solving the sum, because confusion बच्चों में यही होता है. Sir, when the two triangles are similar, how can we identify whether it is solving type of sum or drawing type of sum? मतलब क्या, अभी जो हमने पहले sum किया उसमें solving किया था, right? And solving करने के बाद draw किया था. But अभी का जो sum हम करने वाले हैं उसमें solving कुछ है ही नहीं, directly drawing है. तो वो कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि सॉल्विंग वाला कब करना है, ड्राइंग वाला कब करना है. सो एम आई वेरी क्लियर वी कि क्या सेपरेशन है, क्या आइडेंटिफिकेशन है. वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द लेटर इज कॉमन और नो. इफ द लेटर इज नॉट कॉमन देन द सॉल्विंग मेथड, जैसे अभी सम किया जो हमने पूरा सॉल्विंग करके वैल्यूज फाइंड किए वो मेथड. बट अभी अपने सामने जो सम है उसमें लेटर कॉमन है तो ड्राइंग वाला मेथड है. Okay, so let us see how will we do. अभी एक चीज याद रखना, जो भी लेटर कॉमन होगा, यहाँ पर लेटर आर कॉमन है कि नहीं, तो लेटर आर शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट द बेस. लेटर आर इज द कॉमन लेटर, सो इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट द बेस. बेस में लेफ्ट हैंड साइड में वो कॉमन लेटर होना चाहिए. ऐसा कंपल्सरी नहीं है, but we will make it a rule so that our communication is very clear. Which is the common letter R. So where it should come? It should come on the left hand side of the base. Clear to all of you? Right? क्योंकि देखो हमें ना नॉर्मल अगर मैंने आपको ड्रॉ करने को बोला PQR, तो आप कहां पर ड्रॉ करोगे? राइट हैंड साइड में. आदत से मजबूर, P ऊपर, Q लेफ्ट में, R राइट में, ऐसा हो जाएगा. बना रहे कि नहीं? वैसे भी कर सकते हैं बट ड्राइंग थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, इसलिए वी आर नॉट डूइंग दैट. सो हम अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखेंगे कि जो भी कॉमन लेटर होगा वो कहां पर पोजीशन किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेस सेगमेंट. ओके, सो आर देखो यहां पर आ गया. अच्छा, PQ का वैल्यू कितना है? 4.2. QR का वैल्यू 5.4. PR का वैल्यू 4.8. तो 3 साइडेड फिगर है, बराबर है, इसमें कोई एंगल दिया नहीं है. PQ अपॉन LT का वैल्यू दिया है 3/4, ये रेशियो भी दिया है. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LTR, ये कंस्ट्रक्ट करने को बोला है. तो अभी देखो, अभी सॉल्विंग कुछ भी नहीं करना है, अभी डायरेक्टली ड्राइंग करना है. सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग नाउ. सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? बेस लाइन, बराबर. अच्छा, बेस लाइन पे सेगमेंट कितना है? 5.4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5.4 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करेंगे एंड इस बेस लाइन पर सेगमेंट बनाएंगे. ओके, ये हो गया पॉइंट Q एंड पॉइंटर Q पर रखकर दूसरी तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया पॉइंट R. सो हाउ मच इज सेगमेंट RQ? 5.4 सेंटीमीटर, बराबर. क्लियर? ओके, नाउ इफ यू हैव टू मार्क पॉइंट P,
हाउ मच इज पी आर 4.8, सो विल मेजर 4.8। देखो 4.8 मेजर कर लिया, पॉइंटर आर पर रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, बराबर है। yes, अभी तो सिर्फ आर्क ड्रॉ किया तो पॉइंट पी नहीं मिलेगा। ओके, पॉइंट पी मिलने के लिए अनदर इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो हाउ मच इज पी क्यू 4.2, अभी 4.2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, पॉइंटर क्यू पर रखेंगे एंड उस आर्क को कट करेंगे, तो ये मिल गया पॉइंट पी। विल ड्रॉ ट्राइंगल पी आर क्यू नाउ, मतलब पी आर को जोड़ो, ओके, एंड पी क्यू को जोड़ो। So we have drawn segment PQ, we have drawn segment PR and measurements. Okay. So I request all of you all, इतना ड्रॉ करो चलो मेरे साथ। इतना मैंने आगे तक नहीं लेकर गया, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इतना ड्रॉ कर लो। पहले एनालिटिकल फिगर राइट हैंड साइड में, ओके, और नीचे राइट हैंड साइड में ऊपर एनालिटिकल फिगर और फेयर फिगर थोड़ा नीचे, एकदम भी नीचे नहीं, पेज के बीच में, मतलब एक ही फिगर आना चाहिए, एक एनालिटिकल और एक फेयर, बाकी कुछ नहीं। आधे पेज में फिट करने की कोशिश मत करना। एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट गिव मी टाइम। Just because analytical figure normally I'll position it here. Okay. Did you finish all of you now drawing? Okay, fine. Now pay attention all of you all. अगर नहीं हुआ होगा कंप्लीट तो स्टॉप ड्राइंग, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है। ओके, स्टॉप ड्राइंग एंड पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। जब क्लास में रहते हैं ना तो भी मुझे कम से कम 5-6 बार बोलना पड़ता है स्टॉप ड्राइंग, तब जाके आप लोग रुकते हो। अभी तो आप घर पर हो, पता नहीं आप लोग रुके हो कि नहीं रुके हो। इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, अभी बंद करना, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है बड़ा, बट सुनना बहुत जरूरी है। ओके, सो shall I consider that you all have stopped drawing all of you all? Okay, ये कंसिडर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलो रिक्वेस्ट किया है मैंने आपको, तो इज्जत रखना कुछ। ओके, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी। सो ये आर पॉइंट लेफ्ट साइड में बेस में रखना था, वो सबको समझ में आया, हमने रख दिया है। अब अगर आप ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी आने वाला है। अब अगर आप रेशियो देखो, PQ अपॉन LT का रेशियो 3/4 ये दिया हुआ है।
Now first of all we know that triangle PQR similar to triangle LTR, ये पता है. And we know that if the two triangles are similar, the corresponding sides are in proportion. बराबर है. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके corresponding sides का रेशियो इक्वल है. So triangle PQR is similar to triangle LTR. If triangle PQR is similar to triangle LTR, then PQ upon LT is equal to QR upon TR is equal to PR upon LR. बराबर है. And since PQ upon LT का रेशियो कितना है 3/4, PQ upon LT का रेशियो 3/4 है, तो सबका रेशियो 3/4 को इक्वल होगा. बराबर. True? Okay. Now listen carefully and pay attention. Students, अभी हमको करना क्या है? We have to construct triangle PQR and triangle LTR बोला है. हमने ट्राइंगल PQR तो कंस्ट्रक्ट कर लिया है. अब कंस्ट्रक्ट क्या करना है? ट्राइंगल LTR. अब R कॉमन है तो डेफिनेटली R को लग के ही दूसरा ट्राइंगल होगा. So how to draw that triangle? That is very important. Now students, what we have to do is we have to divide the base segment. बेस सेगमेंट जो है उसको डिवाइड करना है. मतलब क्या मैं समझना चाहता हूं, आप ध्यान से देखो. PQ कितने पार्ट्स का है? 3 पार्ट्स का. LT कितने पार्ट्स का है? 4 पार्ट्स का. PQ is not equal to 3. Please understand, PQ is 3 parts and LT is 4 parts, because जब रेशियो दिया होता है, रेशियो is never the exact value. Ratio is never the exact value. That's why I'm saying PQ कितने पार्ट्स का है? 3 parts का. And LT कितने parts का है? 4 parts का. So PQ is not equal to 3, but I'm saying PQ is 3 parts and LT is 4 parts. That's why the ratio is 3/4. Okay? So please understand, हमने base segment को थोड़ा extend किया है, मतलब रे बना के उसको extend कर दिया. अब please look here. PQ is the side of first triangle and LT is the side of second triangle. ध्यान से सुनना, ये बहुत important discussion है अभी. PQ belongs to which triangle? First triangle. LT belongs to which triangle? Second triangle. PQ is 3 parts and LT is 4 parts. बराबर. PQ is 3 parts, LT is 4 parts. बराबर. So now इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल PQR जो है, ट्राइंगल PQR है, वो ट्राइंगल LTR से छोटा है. ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया वापस एक बार बताता हूं. PQ कितना पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. LT कितना पार्ट्स है? 4. तो बताओ 3 पार्ट्स बड़ा कि 4 पार्ट्स बड़ा? 4 पार्ट्स बड़ा. तो जितने ज्यादा पार्ट्स उतना ट्राइंगल बड़ा, जितने ज्यादा पार्ट्स उतना ट्राइंगल बड़ा. So LT is the bigger triangle. Okay? So what will we do is, अब ये बेस जो सेगमेंट है उसको टोटली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4. बराबर. इसमें से RQ कितने पार्ट्स को डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में. देखना ध्यान से, 1 2 3 एंड ये 4. तो देखो ये RQ, टोटल RQ कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. बिकॉज RQ बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्राइंगल एंड फर्स्ट ट्राइंगल का साइड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट्स में. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो PQ डिवाइड हुआ है. सो मैं यही बताना चाहता हूं, PQ रिसेंबल्स फर्स्ट ट्राइंगल. तो PQ कितने पार्ट्स का? 3 पार्ट्स का. मतलब ट्राइंगल PQR का हर एक साइड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंड LT कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स. मतलब ट्राइंगल LTR का हर एक साइड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा इसका कंक्लूजन होता है. ओके? सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको बताया, PQ 3 पार्ट्स, LT 4 पार्ट्स, इसलिए हमने RQ को कंसिडर किया है ऐसे कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. आपको कुछ करना नहीं है, समझो RQ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ये हो गया चौथा पार्ट. अब ये चौथा पार्ट बाहर आ जाएगा, डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, इसलिए समझ में आता ना, अभी बड़ा ट्राइंगल बाहर की तरफ होगा, बड़ा ट्राइंगल है वो. ओके? अब ध्यान से सुनना, करना क्या आगे. ये हो गया T. अब
आरपी को देखो, आरपी को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? आरपी को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, एंड ये चौथा पार्ट बाहर, बराबर है। ये चौथे पार्ट को नाम देंगे एल। अब एल और टी जोड़ दो, सो बन गया ट्राइंगल एल टी आर। देखो ट्राइंगल एल टी आर, बराबर है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अभी आपको एनालिटिकल फिगर में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रैंडमली पॉइंट टी बाहर लेना है और पॉइंट एल बाहर लेना है, बट इस तरह से लो कि पी क्यू और एल टी पैरेलल दिखे, पी क्यू और एल टी पैरेलल दिखे, ऐसे दो पॉइंट्स टी और एल लेना। ओके, अंडरस्टूड दिस? डन? ओके, नाउ पे अटेंशन ऑफ हियर। ये हमने एनालिटिकल फिगर में तो बना दिया। अभी एनालिटिकल फिगर में ये टी और एल को लोकेट करना है, तो लोकेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले आर से एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी आप बोलोगे सर ये लाइन कितने डिग्री, मतलब ये एंगल कितना डिग्री? ये आपका चॉइस है स्टूडेंट्स, जो मर्जी लेना, 30 लेना, 40 लेना, 50 लेना, जो मर्जी आपका। वी सजेस्ट कि 45 डिग्री इज द बेस्ट, 45 डिग्री इज द बेस्ट, वी सजेस्ट, जो आपका मर्जी ले सकते हैं। ओके, अब ये हमने एक रे बना लिया है, इसका कोई लेंथ नहीं है, रे बना लिया, यहाँ पर एक पॉइंट नाम ले लिया एक्स, अपने मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। कितना रेडियस लेंगे? 1.5। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, उससे ज्यादा मत लेना और 1 से कम भी मत लेना। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 के बीच में जो मर्जी रेडियस लेना, जो मर्जी, बट एक बार जो रेडियस ले लिया वही फिक्स रखना। तो देखो हम कितने पार्ट्स बनाए, टोटल कितना है? मैक्सिमम 4 पार्ट्स है, तो यहां पर हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। कितना बना दिया देखो, 1 2 3 एंड 4। इसको काउंट मत करो, ये पहले से ही था। सो अभी इसको मार्किंग दे देंगे, R1 R2 R3 R4। अब 4 ही पार्ट्स क्यों बनाए? बिकॉज मैक्सिमम कितना पार्ट्स है? 4 से ज्यादा पार्ट्स ही नहीं है, तो 4 पार्ट्स ही बनाना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, R से लेकर R1 का डिस्टेंस आप 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 कुछ भी ले सकते हैं, बट एक बार जो भी रेडियस ले लिया, समझो मैंने 1.5 ले लिया, कितना ले लिया? 1.5। अगर मैंने 1.5 रेडियस ले लिया तो R1 से R2 भी 1.5, R2 से R3 भी 1.5, R3 से R4 भी 1.5। बट ये तो एनालिटिकल फिगर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ओके, समझा? तो मैं बस बता रहा हूं आपको। अब ये T है ना, T R4 को जुड़ेगा। किसको जुड़ेगा? R4 को, बड़ा ट्राइंगल है ना। एंड Q किसको जुड़ेगा? R3 को, 3 पार्ट्स है ना इसलिए। हो गया, ये हो गया एनालिटिकल फिगर, बराबर है। अब फेयर फिगर में क्या करोगे? देखो मैंने आपको बताया था, जो मर्जी डिग्री लेना है, एक रैंडमली नीचे की तरफ, R से नीचे की तरफ एक रे ड्रॉ कर लिया, बराबर। अब 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो ऐसा 1 2 3 4। अब नाम दीजिए R1 R2 R3 R4, बराबर। डन ऑल ऑफ यू? चलो इतना ड्रॉ कर लो सब लोग। प्रथम आई मेड इट वेरी क्लियर ना, प्रथम आप 1 ले लो, 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.5 ले लो, और वट एवर, ज्यादा बड़ा भी मत लेना, ज्यादा कम भी मत लेना। मैंने बोला 1 या 1.5 के बीच में जो मर्जी ले सकते हैं।
साथ ही साथ एनालिटिकल फिगर भी ड्रॉ करो। Finished drawing, all of you? Okay, finished, done. Yes, मैक्सिमम जितना होगा वो कवर करेंगे। Now, please pay attention. Stop drawing, all of you. Stop drawing. I said stop drawing. Okay. यश मैंने बोल दिया ना, अदरवाइज विल बी आउट ऑफ द क्लास। ओके, बार बार वही डाला मैसेज। तो नाउ लिसन केयरफुली। अब जैसे एनालिटिकल फिगर में Q किसको जोड़ा है? R3 को। यहां पर भी R3 पॉइंट एंड Q विल ड्रॉ अ सेगमेंट। ओके, जोड़ दिया। अभी R4 किसको जोड़ना है? T को, बट T तो है नहीं, वो T हमको लाना पड़ेगा। बट वी नो दैट R3Q एंड R4T दे बोथ सेगमेंट्स आर पैरेलल। बराबर है कि नहीं? मतलब अभी हमको एक पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करना है। इस सेगमेंट को एक पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो उसको कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, अब ये ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। कीप द पॉइंटर एट R3। पॉइंटर कहां पर रखा है? R3। एक कन्वीनियंट रेडियस लेना, कन्वीनियंट रेडियस। पॉइंटर R3 पर रखा, एक कन्वीनियंट रेडियस। कन्वीनियंट रेडियस मतलब 1 और 1.5 के बीच में, 1 और 1.5 के बीच में कोई भी एक रेडियस लेना, कन्वीनियंट रेडियस। और इस तरह से आर्क ड्रॉ करना। देखो कैसे आर्क ड्रॉ किया है। आर्क इस तरह से ड्रॉ करना कि अभी हम यहां पर पॉइंट मार्क कर सके एक्स और वाई। ये देखो डेलिबरेटली रेड में मार्क किया है, मतलब आपको इधर पॉइंट्स को नाम देना नहीं है। ये आपको समझने के लिए और मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट्स लिए हैं। एग्जाम में आपको इस पॉइंट्स को नाम देना नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स, इधर नाम दे दिया वाई। आपको एक्स और वाई नाम देना नहीं है। सो क्या किया, वापस एक बार बताता हूं। पॉइंटर कहां पर रखा? R3 पर। एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर आर्क ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर पॉइंट को नाम दे दिया x और यहां पर पॉइंट को नाम दे दिया y। बराबर है। अब कीप द पॉइंटर एट R4। पॉइंटर कहां पर रखा? R4। वही रेडियस, अब रेडियस चेंज होना नहीं चाहिए। जो रेडियस पहली बार लिया ये आर्क ड्रॉ करने को, वही रेडियस अभी लेना, ये रेडियस सेम लेना चाहिए। तो पॉइंटर R4 पर रखा और सेम रेडियस लेके इस तरह से आर्क ड्रॉ किया। देखो आर्क ड्रॉ कर लिया। बराबर है। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया x1 और इधर y1 नाम देने के लिए जगह नहीं है, मतलब पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं हुआ किधर भी। इधर y दे सकते हैं बिकॉज इंटरसेक्शन हुआ है, इधर x1 दे सकते हैं बट इधर y1 के लिए इंटरसेक्शन नहीं हुआ। तो वो कैसे आएगा देखो अभी। नाउ x और y के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ध्यान से देखना भी। पॉइंटर x पर रखा और x से लेकर y तक का डिस्टेंस मेजर किया विद द हेल्प ऑफ राउंडर।
With the help of rounder, keep the pointer at x and pencil point at y and measure the distance between x and y. ये सेम डिस्टेंस, ये सेम रेडियस लेके कीप द पॉइंटर एट x1 नाउ. कहां पर रखेंगे पॉइंटर? x1 पर. एंड कट द आर्क. कट कर दिया आर्क. ये मिल गया y1. अभी r4 और y1 को जोड़ देंगे. r4 और y1 को जोड़ के आगे एक्सटेंड करेंगे. तो ये मिल गया पॉइंट T. समझा? अभी देखो सब पॉइंट्स निकल गए, x निकल गया, y निकल गया, x1 निकल गया, y1 निकल गया. वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा था. सबको समझा? पक्का समझा? चलो इतना ड्रॉ कर लो फटाफट. यस, वेट. अच्छा वापस एक बार देखना सब लोग. R1 R2 R3 R4 सबको समझा है? अभी R3 और Q को जोड़ देंगे. ओके. Now keep the pointer at R3 with a convenient radius. Draw an arc. Now keep the pointer at R4 with the same radius. Radius change मत करना. Draw an arc. X और Y के बीच का डिस्टेंस मेजर करना. वो सेम डिस्टेंस लेके पॉइंटर x1 पर रखना और कट करना. दिस इज पॉइंट y1. अब R4 और y1 को जोड़ दो. We'll get point T. Okay. Done, Lavanya? Okay. Most welcome. Finish drawing up till here? Yes, students. हो गया यहाँ तक? No. Vedant, you cannot write the reason. Correspondence कैसे है? PQR LTR ना. तो P कहाँ पर है? ऊपर है ना. तो P के साइड में L होना चाहिए. तो यहाँ पर L होना चाहिए. एंड Q के साथ T होना चाहिए. तो Q कहाँ पर है? नीचे. तो T भी नीचे होना चाहिए. ओके. सो नेमिंग को चेंज मत करना. वो करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से है. Finished all of you? Okay, now next, let's see. Stop drawing. Okay, stop drawing all of you all. Stop, I said. रुक जा. ठीक है ठीक है. ओके, रुक गए? नहीं, वो आदत है ना, तुम लोग रुकते नहीं है तो बताना पड़ता है. ओके,
ना अभी टी से भी एक लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल होगा, देखो ये से टीएल क्यूपी को पैरेलल होगा, इससे दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करने बराबर है। तो जैसे टी से पैरेलल ड्रॉ करने के लिए सेम ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल इधर भी बनाना पड़ेगा, जिससे ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। देखो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो सेम वे अभी टी से भी एक रे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ कीप द पॉइंटर एट क्यू। कहां पर पॉइंटर रखना है, क्यू पर। देखना ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैंने बताया आपको। ओके, नाउ पॉइंटर कहां पर रखा है, देखो क्यू पर। कन्वीनियंट रेडियस क्या करना है, कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है। देखो आर्क कैसे ड्रॉ किया, पॉइंट को मार्क किया एक्स एंड वाई बराबर। अब पॉइंटर कहां पर रखा है, देखो टी पर। पॉइंटर कहां पर रखा है, टी पर। कन्वीनियंट सेम वही रेडियस, रेडियस को चेंज मत करना भी। शुरुआत में जो रेडियस ले वही रेडियस, कन्वीनियंट रेडियस लेके आर्क को कट कर मतलब ड्रॉ करना, दूसरा आर्क ड्रॉ कर लिया बराबर है। अब ये हो गया x1, बट इधर y1 नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, अभी x और y के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, x और y के बीच का। सो कीप द पॉइंटर एट x and the pencil point at y. Measure the distance between x and y with the rounder. वही सेम रेडियस लेके keep the pointer at x1 and cut an arc. तो अभी हमको एक पॉइंट मिला y1 बराबर है। अब y1 और t को जोड़ देंगे। सो यहां पर एक पॉइंट को नाम दे देंगे L, जो ऑलरेडी दिया है, देखो इधर L। ओके, सो TL और QP पैरेलल लाइंस हो गए। तो अभी ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुआ बराबर है। ये मार्किंग होना चाहिए, एंगल कॉन्ग्रुएंट का मार्किंग बताओ, कुछ भी मार्किंग बताओ, ऐसा कलर तो नहीं बता सकते बट कॉन्ग्रुएंट मार्किंग बताओ। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ट्राइंगल। सो हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना था, PQR एंड LTR। तो हमने PQR ये छोटा ट्राइंगल भी कंसिडर कर दिया, एंड ट्राइंगल LTR ये ट्राइंगल भी कंसिडर कर दिया। ओके, तो इस मेथड को बोलते हैं ड्राइंग मेथड। एंड जो पहला मेथड था वो सॉल्विंग मेथड था। सॉल्विंग मेथड तभी आएगा जब लेटर कॉमन नहीं होगा, एंड जब लेटर कॉमन होगा तो ड्राइंग वाला मेथड होगा। ओके डन, चलो ड्रॉ दिस फर्दर। ओके वेट जिम्मी, ओके वेट, सेम मेथड देखो इधर। अब पॉइंटर कहां पर रखा है, क्यू पर। we have taken a convenient radius, convenient means 1 or 1.5 whatever you feel, and we are drawing an arc. We are locating this point as x and the other point here as y barabar. Now with the same radius, don't change the radius, keep the pointer at t, keep the pointer at t and draw an arc. Okay, now we can mark this point as x1, but we don't have y1. So to get y1, what are we doing, we are keeping the pointer at x and pencil point at y, and we are measuring the distance between x and y. After measuring the distance between x and y with the same distance, keep the pointer at x1.
and cut an arc. Now we have got y1. Now point y1 and t we have to join and extend it to get point L here. Okay, so this is our point L. So now we have got second triangle, triangle L, T, R. And the two angles are congruent, we know. Niketan, if you have finished, if you don't have doubt, the lecture is over now. If you feel that construction I need, then you have to sit till all the doubts are clear. Okay. These are homework sums, you can do it. Okay. These are homework sums, same type. Okay. So this lecture is done. So don't worry about homework. मतलब main जो था वो हमने कर लिया है. Okay. लेक्चर 3 हो गया था, लेक्चर 4. लेक्चर 4. सेम टाइप है, लेक्चर 4 में भी सेम टाइप है, बट जो इंपॉर्टेंट सम है वो कर लेते हैं. ओके. ये इसका सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको, बाकी सब आपको खुद से करना है. ओके. आई विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन. ओके. सेम टाइप है जो अभी किया, वो ड्राइंग वाला मेथड. और आपको समझेगा कैसे ड्राइंग वाला मेथड है, मैंने क्लियरली आपको बताया. वी शुड हैव अ कॉमन लेटर. डू वी हैव अ कॉमन लेटर हियर between the two triangles? Yes or no? Which is the common letter? Come on, tell me. Yes, which is the common letter? Perfect, very good. Common letter is A. So when the two triangles are similar and if they have a common letter in between two, then we say we have to use drawing method. Okay. So triangle AMT similar to triangle AHE. इसमें triangle AMT के informations दिए हैं. MA 6.3, angle MAT 50 degree, 85.6 centimeter, and MA upon HA is 7/5. Construct triangle AHE. Okay. So simple है. सबसे पहले एनालिटिकल फिगर में ट्रायंगल AMT जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मैंने आपको क्लियरली बताया था, जो भी लेटर कॉमन होगा वो बेस में कहां पर होगा? लेफ्ट में. अगर आदत से मजबूर नेचुरल वे में अगर आप ड्रॉ करने जाओ तो अपने हिसाब से ए ऊपर आ जाएगा, बिकॉज हम आदत से मजबूर जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ए ऊपर ले लेंगे. शुरुआत में ए है तो ऊपर ले लेंगे, बराबर है. ऐसे नहीं करना है, जो कॉमन है वो बेस के लेफ्ट में लेना है. तो हमने ए को लेफ्ट में ले लिया, बराबर है. हाउ मच इज MA? 6.3. तो यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर. फिर एंगल MAT कितना? 50 डिग्री. AT कितना? 5.6 सेंटीमीटर. ओके. नाउ रेशियो दिया है MA अपॉन HA. Now MA is 7 parts or HA 5 parts. Now MA 7 parts मतलब triangle AMT is the bigger triangle. MA यहाँ पर आ रहा है ना, 7 parts मतलब ये triangle का हर एक साइड कितने parts का होगा? 7 parts का होगा. And HA कितना parts? 5 parts. तो ये छोटा triangle होगा 5 parts वाला. Is it clear? ये triangle 7 parts वाला और ये triangle 5 parts वाला. I hope all of you have understood this. पक्का? ओके. सो अभी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर रेडियस लेके बेस सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. पॉइंटर एम पे रख के यहाँ पर आर्क कट कर लिया. AM 6.3 सेंटीमीटर. अब एंगल A 50 डिग्री. सो कीप द प्रोट्रैक्टर एट A. 50 डिग्री मेजर करेंगे, पॉइंट मार्क करके एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ओके. ऐसा मत करना कि क्वेश्चन को आगे कट करें. ओके. यहाँ पर जगह नहीं है करके कट कर दिया है. आप थोड़ा नीचे ड्रॉ करना.
अब if we have to locate T, how much is the distance between A and T? 5.6 centimeters. So first we'll measure 5.6, keep the pointer at A and cut an arc. This is point T. Now join M and T. So you get triangle AMT. But हमें AMT construct करने नहीं बोला है. क्या बोला है construct करने? Triangle AHE. Now students, we know that triangle AMT similar to triangle AHE. If the two triangles are similar, the corresponding sides are in proportion. So MA upon HA is equal to AT upon AE is equal to 7 upon 5. Because MA upon HA का वैल्यू दिया है ना 7 upon 5. तो हर एक साइड का रेशियो 7 upon 5 होगा, corresponding साइड का रेशियो. तो AT upon AE will be 7 upon 5. बराबर है. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने MT upon HT का रेशियो नहीं लिया. MT upon HE का रेशियो लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो साइड का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए. सो जो साइड दिया उसी का वैल्यू लेंगे. सो AT अपॉन, चलो AT का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AT का करस्पॉन्डिंग साइड AE. सो AT अपॉन AE इज आल्सो 7 अपॉन 5. बराबर. मतलब मैक्सिमम कितने पार्ट्स है? 7 पार्ट्स है. तो चलो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिख रहा है आपको? वापस एक बार दिखा दो. देखो ये हो गया 7 पार्ट्स का. तो बेस सेगमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वल पार्ट्स में भी. यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आता है सर आपको कैसे समझेगा वो डिस्टेंस. देखो ये एनालिटिकल फिगर में रफली करना है, मेजरमेंट्स नहीं लेना है. बट कॉमन सेंस है ना, 6.3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो कॉमन सेंस से कहता है इज 63 डिविजिबल बाय 7, इज 63 डिविजिबल बाय 7, 7 9 जा 63. बराबर है कि नहीं? तो यस 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. आपको एग्जैक्टली डिवीजन नहीं करना है, बट बता सकते हैं कि 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. हमें 7 पार्ट्स और 5 पार्ट्स का पॉइंट चाहिए. तो ये पॉइंट हमको लगेगा. देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पार्ट हमें लगेगा. ओके एंड ये 7th पार्ट M है. बराबर. तो ये हो गया H. MA के साथ H है ना, तो 7 पार्ट्स 5 पार्ट्स, तो ये हो गया H. अब यहां से एक पैरेलल लाइन जाना चाहिए. वहां पर भी 7 पार्ट्स में से 5th पार्ट को ले लिया E. अब ये भी देखो 5.6 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? 5.6 मतलब 56 इज 56 डिविजिबल बाय 7. यस 7 8 जा 56, तो 56 को भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं. मतलब 7 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है. आपको एग्जैक्टली आई रिपीट डिवीजन करना नहीं है. सो 5th पार्ट हमने ले लिया E और ये पार्ट ले लिया H. अभी H और E को जोड़ दो. तो दिस लाइन वुड बी पैरेलल टू MT. बराबर. और A कॉमन लेटर हो गया. अभी जैसे मैंने आपको बताया था A से नीचे हमको एक रे ड्रॉ करना है. बेस्ट कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का बेस्ट. आपको एग्जैक्ट 45 वगैरह कुछ लेना नहीं है, बट एक रैंडमली रे ड्रॉ करना है नीचे की तरफ. अब इसको कन्वीनियंट रेडियस मतलब 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर लेके कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 मैक्सिमम है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. देखो काउंट करो कितने पार्ट्स है. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. बराबर है. तो हमारे काम का कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट एंड 7th पार्ट. बिकॉज रेशियो वैसा है ना 7/5. तो 7th पार्ट एंड 5th पार्ट हमारे काम का है. H है 5th पार्ट मतलब 5 पार्ट से. तो H है ना, H A5 को जोड़ेगा. H किसको जोड़ेगा? A5 को. एंड M किसको जोड़ेगा? A7 को. बराबर. समझा आपको ये कैसे आया? बिकॉज HA 5 पार्ट्स है और MA 7 पार्ट्स है. तो M 7th पार्ट को जुड़ेगा और H 5th पार्ट को जुड़ेगा. तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. बराबर है. ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो अभी हमको भी यहाँ पर ड्रॉ करना है. तो एक रे ड्रॉ कर लिया. बराबर. अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 इक्वल पार्ट्स में. तो 1 2 3 4 5 6
7 बराबर है। चलो मार्क करो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. फाइन। नाउ स्टूडेंट्स वी नो M किसको जुड़ेगा A7 को, फिलहाल क्योंकि H पॉइंट है ही नहीं है तो M किसको जुड़ेगा A7 को, तो M और A7 जोड़ दो, जोड़ दिया बराबर है। अब यहां पर जो एंगल बनाना सेम एंगल A5 पर बनना चाहिए, तो चलो नाउ कीप द पॉइंटर एट A7 एंड कन्वीनियंट रेडियस। पॉइंटर कहां पर रखा है A7 और कन्वीनियंट रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर लिया। अब हमको पॉइंट्स मिले P और Q बराबर। अब सेम रेडियस लेके, सेम रेडियस पॉइंटर कहां पर रखा A5 पर, सेम रेडियस आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसको नाम दे दिया P डैश बराबर। अब Q डैश मिलने के लिए P और Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, वो डिस्टेंस लेके पॉइंटर P डैश पे रखा और आर्क कट कर लिया, ये मिलेगा Q डैश। अब किसको जोड़ेंगे A5 को और Q डैश को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। A5 क्यों A5 को, बिकॉज फिफ्थ पार्ट है बराबर है। तो यहां पर एक पॉइंट मिला H, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। आइडेंटिकल मार्किंग होना चाहिए, गॉट इट। आइडेंटिकल मार्किंग जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का आइडेंटिकल मार्किंग। वो P Q सब निकल गया, वो समझाने के लिए था बराबर है। अब वापस यहां से भी पैरेलल होना चाहिए एक लाइन बराबर है कि नहीं से, तो ये एंगल के लिए यहां पर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट बनाना चाहिए, तो कीप द पॉइंटर एट M नाउ। कन्वीनियंट रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, P और Q मार्क कर लिया। अब पॉइंटर H पे रखो, सेम रेडियस, रेडियस चेंज मत करना, सेम रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करना। P डैश तो है हमारे पास बराबर है। अब Q डैश आने के लिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q मेजर करेंगे। अब ये जो भी डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस लेके P डैश से लेकर आर्क को कट करेंगे। अब H एंड Q डैश जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे इसे। डन। अब इस पॉइंट को मार्क क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्क करेंगे E। अब यहां का एंगल और यहां का एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। डन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। ये सम्स और अभी तक के जितने भी सम्स हमने किए वो सारे के सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके चलो ड्रॉ दिस फिगर फास्ट, पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ करो अभी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हियर। 7 पार्ट्स क्यों लिए, 5 पार्ट्स क्यों लिए, सबको समझा है। देवेंद्र इट्स सेम लाइक द अर्लियर सम। सेम कहां पर अटक रहे हो आप। Yes, I know I am a bit busy with some different work. For your information, we are moving online. Okay, that's fine. So online का पूरा काम चालू है. In ratios, what in ratios, Devendra?
What exactly you need ratio, Devendra? You tell me. अच्छा, पार्ट्स कैसे? 7 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स ना। एमए कितना पार्ट्स है? 7 पार्ट्स। एचए कितना पार्ट्स है? 5 पार्ट्स। इससे पता चलता है एमए जिस ट्राइंगल में है, एमए वो बड़ा ट्राइंगल है, एंड एचए जिस ट्राइंगल में है वो छोटा ट्राइंगल, बिकॉज 7 इज बिगर देन 5। बराबर है। सो हमने कौन सा ट्राइंगल पहले ही बना दिया था? एएमटी ट्राइंगल पहले ही बना दिया था, बिकॉज उसका इंफॉर्मेशन दिया है। अब हमने ए से नीचे एक लाइन ड्रॉ किया है, वो लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 7 इक्वल पार्ट्स में। मतलब लाइन तो और भी आगे बढ़ सकता है, बट 7 इक्वल पार्ट्स तक ड्रॉ करके आर्क्स आपको रोकना है A7 तक। बराबर है। फिर A7 और M को जोड़ दिया, A7 और M को जोड़ दिया। अब ये जो भी एंगल बना है उसके जैसा सेम कॉन्ग्रुएंट एंगल A5 पर बनना चाहिए। तो वह आर्क्स ड्रॉ करके ये पॉइंट हमने निकाला है, ये पॉइंट, और हमने A5 से एक पॉइंट को जोड़ते हुए यहां तक एक्सटेंड किया तो H मिल गया। फिर जैसा इधर सेम प्रोसेस किया वैसे इधर भी कर दिया, ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना लिया, ताकि ये HE सेगमेंट भी मिल जाएगा। okay? Done. Finish drawing, all of you? Have you got the figure properly? Is anybody struggling to draw with the figure? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फिगर ड्राइंग में तो बोलो। बिकॉज आपको कंस्ट्रक्शन में अगर डाउट आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ पर ही डाउट आएगा, ड्राइंग पार्ट में और वो सॉल्विंग पार्ट में। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट से मैंने कवर कर लिए। Finished, all of you, right? देवेंद्र, आर यू एबल टू ड्रॉ द फिगर? हो गया ड्रॉ करके आपका?
ओके, अंडरस्टूड, फाइन। सो नाउ सेम टाइप, देखो इसमें अभी देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एलबीएन में लेटर बी कॉमन है। सो लेटर बी कहां पर आएगा? बेस के लेफ्ट में। ओके, सो वैसे ही आपको ये भी ड्रॉ करना है। सो डू नॉट वरी, ये सेम टाइप के थे। नाउ विल मूव ऑन टू लेक्चर 2। ओके, सो लेक्चर 3, लेक्चर 4 वी हैव कंप्लीटेड, सेम टाइप के सम्स हैं। अब लेक्चर ये मैं जो बताना चाहता था आपको, जो आपको करना नहीं है, कंसेप्ट है सर्कल का एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके, ये आपको, ये जो कंसेप्ट है सर्कल का कंसेप्ट है, जो डिलीट किया गया है, सिलेबस से निकाल दिया है, तो इस सिलेबस पर बेस्ड जो भी कंस्ट्रक्शंस है वो करने नहीं है। मतलब विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग द सेंटर, ये कंसेप्ट पर कोई भी सम्स होंगे कंस्ट्रक्शन में, वो हमको करने नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये सबको आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम। प्रैक्टिस सेट 4.2, सम नंबर 6। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो एनालिटिकल फिगर में एक सर्कल होगा जिसका सेंटर P है एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से कितने दूरी पर? 5.5 सेंटीमीटर के दूरी पर पॉइंट Q है। तो पॉइंट Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर P एंड रेडियस कितना है? 3.4, याद रखना। ओके, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। तो Q से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाने हैं। ये हो गया QA और ये हो गया QB। ओके, सो वी ऑल नो टेंजेंट बनाने के लिए रेडियस बहुत जरूरी है, तो हमने PA और PB रेडियस बना लिया। आपको समझेगा कैसे। ओके, डू नॉट वरी, अभी स्टार्ट करते हैं फिर फिगर। सबसे पहले रेडियस कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। सो टेकिंग रेडियस 3.4 सेंटीमीटर विल ड्रॉ वन सर्कल विद सेंटर P। तो P सेंटर है, पॉइंटर P पर रखा, एक सर्कल बना लिया, बराबर। अब P से कितने डिस्टेंस पर Q पॉइंट है? 5.5। सो कीप द स्केल, एक लाइन पहले बना लेना। ओके, एरो मार्किंग जरूरी है। नाउ टेक रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। कीप द पॉइंटर एट P, कट एन आर्क, दिस पॉइंट इज पॉइंट Q। क्लियर ऑल ऑफ हियर? ये 5.5 सेंटीमीटर है। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, Q से टेंजेंट्स बनाने हैं। ये तो एनालिटिकल फिगर है, एनालिटिकल फिगर में तो सीधा बना दिया, बट फेयर फिगर में ऐसे कहां पर, मतलब सर्कल के कौन से पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो ये अपने मर्जी से नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। तो कीप द पॉइंटर एट P। ओके, देखो इधर क्या कर दिया मैं आपको बताता हूँ। ये Q हो गया, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इधर एनालिटिकल फिगर में ध्यान देना, एनालिटिकल फिगर में PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर का साइन 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मार्किंग, और L नाम दे दिया इसको। ओके, और एक सर्कल बना दिया। राइट, तो अभी आपको इधर क्या करना है? सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कीप द पॉइंटर एट P, ध्यान से सुनना, कीप द पॉइंटर एट P, मेजर मोर देन हाफ ऑफ सेगमेंट PQ। मतलब सेगमेंट PQ का जो लेंथ है उसका हाफ जितना भी होगा उससे ज्यादा ही लेना है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ सेगमेंट PQ। सो ड्रॉ एन आर्क अबव, ड्रॉ एन आर्क बिलो, बराबर है। with the same radius from point Q, with the same radius from point Q, cut the arc above, cut the arc below. Now join these 2 points X and Y, join this and draw a line. So इस लाइन को बोलेंगे perpendicular bisector. So देखो, we have a perpendicular sign here and bisector identical markings. अगर ये आपने मार्किंग्स नहीं दिखाई या 90 डिग्री साइन नहीं दिखाया, your marks would be deducted. It's a perpendicular bisector.
Got it? Now students, what we can do is keep the pointer at M. Keep the pointer at M and radius MP. Keep the pointer at M and radius MP और radius MQ लेकर एक सर्कल बना देंगे. I repeat, keep the pointer at M and radius equal to MP और radius equal to MQ लेकर हम एक सर्कल बना देंगे. Got it? Now this small circle, the second circle which we have drawn intersects the first circle at 2 points. यहाँ पर एक एंड यहां पर एक. इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देंगे A and B. Now we can draw tangent from Q at point A and we can draw tangent from Q at point B. बराबर है. बट tangent का इंपॉर्टेंस या tangent का एग्जिस्टेंस तभी होता है when there is a radius. So radius should be perpendicular to the tangent. We know there is a tangent theorem. It says that tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. तो इस लाइन को tangent बोलने के लिए radius होना जरूरी है. तो draw radius PA and perpendicular sign should be shown at point A. तो देखो perpendicular sign is shown at A and radius 3.4 centimeter. Now draw radius PB with a perpendicular sign at B. So this is a complete figure. Draw this figure fast. Draw this. I would like to help you all. सबसे पहले क्या ड्रॉ किया चलो बताओ. सबसे पहले क्या ड्रॉ किया. रेडियस 3.4 सेंटीमीटर लेके सर्कल ड्रॉ किया. फिर एक लाइन ड्रॉ किया. डिस्टेंस कितना लिया 5.5 सेंटीमीटर. ये सुनो. तो 5.5 सेंटीमीटर पॉइंटर पी पर रख के आर्क कट कर दिया. इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यू. इतना ड्रॉ कर लो फास्ट. फिनिश ड्राइंग अप टिल हियर. अभी हमको क्या ड्रॉ करना है. वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी क्यू. We have to draw perpendicular bisector of segment PQ, right? So keep the pointer at P, measure more than half of segment PQ, draw an arc above, draw an arc below. With the same radius from point Q, cut the arc above, cut the arc below. Now join these 2 points. So this line is a perpendicular bisector. So perpendicular symbol and identical marking of bisector होना ही चाहिए.
Okay, now keep the pointer at M, taking MP or MQ as a radius. Pointer कहाँ पर रखना है? M पर. Taking MP or MQ as a radius, we have to draw another circle. Now यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देंगे A और इस पॉइंट को नाम दे देंगे B. Draw QA, draw QB. Now tangents we say only if the radius is drawn. So from P we draw radius PA with 90 degree marking and radius 3.4, 90 degree marking at B and radius PB. Okay, so have you understood how to draw tangents from an external point to a circle? So to draw tangents from an external point to a circle, we have to draw perpendicular bisector of segment PQ. मतलब यहाँ पर जैसे PQ segment है उसका perpendicular bisector draw करके draw another circle. They will give us points of intersection A and B. So उस points पर हमको tangents बनाने हैं. And tangents बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? Radius का. तो draw radius to show that radius and tangent both are perpendicular to each other. Okay, done. And the first part of drawing a tangent at any point on a circle तो बहुत simple है, वो सबको आता होगा, right? So we can say we have done almost, we have covered all type of sums of construction. There are basically 4 types. उसमें 3 types तो हमने cover कर लिए हैं. Drawing tangents from an external point and ये 2. और जो मैंने आपको बता दिया तो सर्कल के टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज सर्कल का वो कंसेप्ट ही ओमिट हो गया है. अगर सर्कल का वो कंसेप्ट ओमिट हुआ है तो वो कंस्ट्रक्शन में भी नहीं आएगा. डन. Any which way I will be teaching this chapter to you all again, so not to worry. जब सब बच्चों का एग्जाम सेमेस्टर का खत्म हो जाएगा, एक्चुअली सेमेस्टर कंडक्ट ही नहीं करने को बोला है बोर्ड ने, बट स्टिल योर स्कूल्स आर कंडक्टिंग. नहीं तो ये हफ्ते में सर्कल कंप्लीट होके वी शुड हैव स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्शन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्कल खत्म करके कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सर्कल मैक्सिमम जैसे मैंने बोला 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑल. ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय. विक्रोली के स्टूडेंट्स को कल के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंट जोसेफ. जिनका भी ज्योमेट्री पेपर जिसमें कंस्ट्रक्शन है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ओके, यस, पार्टिसिपेंट्स क्यों लेस है? बिकॉज हमने सब बच्चों को नहीं बुलाया है, ओनली विक्रोली के एंड मुलुंड के बच्चे ही आए थे. ओके, और उसमें से भी जिनके एग्जाम से वही बच्चे आए थे. ये ऑफिशियल लेक्चर नहीं है, ये अनऑफिशियल सिर्फ आपके लिए है जिनका स्कूल एग्जाम से, इसके लिए रखा है. चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय. देवेंद्र, जब कंस्ट्रक्शन होगा तभी आ जाना फिर.
मतलब आपका काम तो हो गया, आज आपने अटेंड कर दिया।